پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میرے نئے تحریر کردہ ناول مارٹن اور شیرون ایک رومانوی داستان کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میرے اس نئے تحریر کردہ ناول کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 10 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنے اس ناول کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I fell in love with a bankrupt کا ابتدائی تعارف۔ یہ پولینڈ کے ایک یوٹیوب چینل کی ایک بے حد خوبصورت اور مختصر دورانیے کی ایک مختصر فلم ہے، جسے لو بسٹر شو میں پیش کیا گیا ہے اور جسے عوام میں بے حد پسند کیا گیا ہے۔ اس فلم کو سن 2022 میں وارسا کے ایک نشریاتی ادارے ایمو ماما کے زیر اہتمام ویژول سائنس نامی ایک گروپ نے تحریر کیا ہے۔ آئی فیل ان لو ود بینکرپٹ کی رومانوی داستان۔ مارٹن اور اس کی منگیتر جیسیکا ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ مارٹن نے جیسیکا کو اس موقع پر اسے منگنی کی انگوٹھی پیش کر دی، جسے پہن کر جیسیکا خوشی سے پھولی نہیں سمائی، اور اس نے اپنی اس منگنی کی انگوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے مارٹن سے کہا کہ پیارے، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ابھی مارٹن جیسیکا کو اس خوشگوار لمحے میں کوئی جواب دینا ہی چاہ رہا تھا کہ اس ریسٹورنٹ کی ایک ویٹریس، جس کا نام شیرون تھا، وہ مارٹن کی میز پر اپنی کریڈٹ کارڈ مشین کے ساتھ آئی، اور اس نے مارٹن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر، آپ کا کریڈٹ کارڈ بلاک ہے۔ جس پر جیسیکا نے حیرانگی سے ویٹرس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جس پر مارٹن نے پریشان ہوتے ہوئے اس ویٹرس سے کہا کہ نہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے آپ دوبارہ کوشش کریں۔ اس دوران مارٹن کا موبائل فون بھی بج اٹھا اور وہ اپنا فون سننے لگا، لیکن جب مارٹن نے وہ فون سنا تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ فون ایک سرکاری محکمے کی طرف سے تھا، جس میں اسے اس سرکاری افسر نے بتایا تھا کہ اس کی کمپنی کو کاروبار کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ اپنی تمام دولت اور جائیداد سے محروم ہو گیا ہے۔ جیسیکا نے جب مارٹن کے چہرے پر یہ پریشانی دیکھی تو اس نے مارٹن سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو تب مارٹن نے جیسیکا کو اپنی پریشانی کی وجہ بتائی اور کہا کہ وہ اس ریسٹورنٹ کے رات کے کھانے کے پیسوں کی ادائیگی کر دے، کیونکہ اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں۔ جس پر جیسیکا نے کمال بے رخی اختیار کرتے ہوئے انتہائی تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مارٹن کو غرور کے ساتھ کوڑا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس ریسٹورنٹ کے ڈنر کا بل ادا نہیں کرے گی، اور نہ ہی وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے گی جو کہ کلاش ہو چکا ہو۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اس ریسٹورنٹ کی خاتون مینیجر اپنے کاؤنٹر سے اٹھ کر مارٹن اور جیسیکا کی میز پر آ گئی، اور اس نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے احتراماً کہا کہ اگر آپ لوگ اپنے بل کی ادائیگی نہیں کریں گے تو میں پولیس کو بلانے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اس پر جیسیکا نے بدتمیزی سے اپنی تیز آواز میں اس خاتون مینیجر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میز کو کس نے بک کروایا تھا؟ اور پھر جیسیکا نے مارٹن کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے، یعنی مارٹن نے،
और किसने ग़िज़ा और शैम्पेन का ऑर्डर दिया था? ये भी इसने ही दिया था, यानी मार्टिन ने। और फिर मैं आपको बताऊं, आप इसे गिरफ्तार कर लें। मार्टिन ने जेसिका के चेहरे और उसकी बेवफाई को इंतहाई सोगवार नज़रों से देखा और उसकी इन दिल दुखा देने वाली बातों को इंतहाई गम और दुख की कैफियत के साथ सुना। इस वेट्रेस ने जेसिका को निहायत एहतराम से कहा कि लेकिन मैडम, आप दोनों ने ही इस डिनर का खाना एक साथ नहीं खाया था क्या? जिस पर जेसिका ने इस वेट्रेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि लो देखो, एक गरीब आदमी दूसरे गरीब आदमी की हिमायत करने लगा है। और इसके साथ ही जेसिका अपनी मेज़ से उठकर बेरुखी के साथ वहां से चल दी, जबकि मार्टिन ने जेसिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उस रेस्टोरेंट की खातून मैनेजर ने कहा कि ठीक है, फिर मैं पुलिस को बुला लेती हूँ, और ये कहकर वो अपने मोबाइल से पुलिस को कॉल मिलाने लगी। लेकिन फिर उस वेट्रेस ने जल्दी से अपनी मैनेजर को रोकते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिनर का ये बिल वो खुद अदा कर देगी। जिस पर मार्टिन ने इस वेट्रेस को हैरानगी से देखते हुए पूछा कि क्या तुम मेरा ये बिल अदा कर दोगी? और इसके साथ ही उस रेस्टोरेंट की खातून मैनेजर ने भी अपनी वेट्रेस की ये बात सुनकर चकरा गई, और फिर उन्होंने भी हैरानगी से अपनी वेट्रेस से पूछा लेकिन क्यों? और फिर उन्होंने मार्टिन की तरफ भी हैरानगी से देखा और फिर कहा कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मार्टिन ने उस वेट्रेस को हमदर्दी से देखते हुए कहा कि मुझे अफसोस है, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। और इसके साथ ही मार्टिन ने अपनी कलाई की कीमती घड़ी उतार कर उसे देते हुए कहा कि इस घड़ी की कीमत इस खाने के बिल की कीमत से 3 गुना ज़्यादा है, और अगर तुम इसे फ़रोख्त कर दोगी तो इससे तुम्हारा नुकसान पूरा हो सकता है। और फिर मार्टिन ने उस वेट्रेस का शुक्रिया अदा किया और खुदा हाफिज़ कहते हुए अपनी शैम्पेन की बोतल उठाकर बोझल कदमों के साथ इस रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। उस वक्त शेरोन भी सोचने लगी कि शायद उसे पता नहीं है कि किस्मत ने इन दोनों को किसी ख़ास मकसद के तहत एक दूसरे से मिलवा दिया है, और उसे ये भी मालूम नहीं था कि कंगाल लखपति शख्स उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। इधर मार्टिन इस रेस्टोरेंट के बाहर जाकर मदद के लिए अपने एक गहरे दोस्त और कारोबारी शराकतदार जैक को फ़ोन मिलाने लगा और उससे मदद के लिए मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन जैक ने मार्टिन की बात ही नहीं सुनी और अपना फ़ोन बंद कर दिया। इसी दौरान शेरोन भी रात गए रेस्टोरेंट से अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वापस जाने के लिए रेस्टोरेंट के दरवाजे से अपनी दीगर साथी वेट्रेसेस के हमरा बाहर निकली, और जब वो रेस्टोरेंट का दरवाज़ा बंद करने लगी थी तो उसने देखा कि मार्टिन ने गुस्से से अपना मोबाइल फ़ोन फेंक दिया है। तो फिर उसने मार्टिन को मुखातिब करते हुए पूछा कि सर, क्या सब ठीक तो है ना? जिस पर मार्टिन ने उसे लाचारी की हालत में कहा कि क्या कोई शैम्पेन की 2 बोतलें पीने और एक महंगा डिनर करने के बाद भी अपने होश हवास में रह सकता है, और मेरे पास तो अब घर जाने के लिए टैक्सी के किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस बात पर शेरोन ने मार्टिन को कहा कि सर, मेरे पास आपको टैक्सी के किराए के देने के लिए तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको आपके घर पर छोड़ सकती हूँ। फिर शेरोन सोचने लगी कि मेरी ये मेहरबानी मेरे लिए किस कदर अहम बन जाएगी, इसका तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर जब शेरोन अपनी कार में मार्टिन को लेकर उसके घर पर पहुंची तो वहां पर पहले से ही पुलिस की एक कार खड़ी हुई थी। मार्टिन तेज़ी से शेरोन की कार से बाहर निकला और उसने परेशानी के आलम में पुलिस ऑफिसर से पूछा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है और ये मेरा घर है। तो उस पर पुलिस ऑफिसर ने मार्टिन को
अपना सरकारी हुकूमती कार्ड दिखाते हुए अपना तारुफ करवाया और उसे बताया कि वो एक टैक्स ऑफिसर है और उसका घर हुकूमती तहवील में ले लिया गया है और अब वो अपने इस घर में दाखिल नहीं हो सकता और अब तुम यहाँ से जाओ। जिस पर मार्टिन ने ज़िद्दी लहजे में उस ऑफिसर से कहा कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो यहाँ पर इस घर में ही रहता है। जिस पर उस टैक्स ऑफिसर ने मार्टिन को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने इस घर में दाखिल होने के लिए इस घर की हदूद या अहाते में दाखिल होने की कोशिश भी की तो वो उसे गिरफ्तार कर लेगा। इस बात पर मार्टिन ने तकरीबन रोते हुए अपने दोनों हाथ उस टैक्स ऑफिसर के आगे करते हुए कहा कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है और वो उसे गिरफ्तार कर ले। और फिर मार्टिन उस टैक्स ऑफिसर को मजबूर करने लगा कि वो उसे गिरफ्तार कर ले। जिस पर घबराई हुई शेरोन आगे बढ़ी और उसने इस टैक्स ऑफिसर को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा कि मुझे अफसोस है ऑफिसर, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं करें, ये वाकई बहुत परेशान हैं। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि जेसिका मार्टिन के घर के अंदर से नमूदार हुई और उसने मार्टिन को देखकर मस्नूई मोहब्बत से उसे उसका नाम लेकर पुकारा। जिस पर मार्टिन ने उस टैक्स ऑफिसर से हैरानगी से पूछा कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर उस टैक्स ऑफिसर ने मार्टिन को बताया कि ये तुम्हारी मंगेतर है और ये यहाँ से अपना सामान लेने के लिए आई है। जिस पर मार्टिन ने उस टैक्स ऑफिसर को बताया लेकिन ये तो मेरी मंगेतर नहीं है। इस बात पर जेसिका चौंक गई और हैरानगी से मार्टिन से कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। एन उसी वक्त शेरोन ने मार्टिन का बाजू पकड़ लिया और उसके करीब होते हुए उस टैक्स ऑफिसर से कहा कि ये औरत झूठ बोल रही है, इनकी मंगेतर तो मैं हूँ। इस बात पर जेसिका तमस्खराना अंदाज में हंस पड़ी। जिस पर उस टैक्स ऑफिसर ने तस्दीक के लिए मार्टिन से पूछा कि सर क्या ये सच है। जिस पर मार्टिन ने शेरोन के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसे अपने लिए मोहब्बत नज़र आई। तो फिर मार्टिन ने उस टैक्स ऑफिसर को बताया कि जी हाँ, बिल्कुल यही सच है। मार्टिन के इस जवाब को सुनकर तो जेसिका के जैसे होश ही उड़ गए और उसने परेशानी के आलम में मार्टिन को देखते हुए उससे पूछा कि ये तुम क्या कह रहे हो। इस दौरान उस टैक्स ऑफिसर ने जेसिका से कहा कि मुझे अफसोस है मैडम, क्योंकि आप ये सूटकेस अब अपने साथ नहीं ले जा सकती। और इसके साथ ही मार्टिन ने भी उस टैक्स ऑफिसर को ये भी बता दिया कि उसने इस औरत को अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा है। इस पर जेसिका ने उस टैक्स ऑफिसर को बदतमीज़ी से चीखते हुए बताया कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मैं मार्टिन की मंगेतर हूँ और ये सूटकेस मेरी ही मिल्कियत है। लेकिन जेसिका का ये जुमला मुकम्मल होने से कबल ही एक पुलिस ऑफिसर ने जेसिका का वो सूटकेस उसके हाथों से वापस ले लिया और फिर जेसिका मार्टिन के पास आई और उसे धमकी देते हुए कहा कि अब उसे पछताना पड़ेगा और इसके बाद वो वहाँ से चली गई। इसके बाद वो टैक्स ऑफिसर अपनी पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहाँ से वापस चला गया और इसके बाद शेरोन मार्टिन से अलग होकर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मार्टिन ने तशक्कुर भरी नज़रों से अपनी मोहसिन शेरोन को देखा और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तुमने मुझे दोबारा बचा लिया है। और ये कहकर मार्टिन वहाँ से जाने लगा तो शेरोन ने उसे जाने से रोक लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ चलें। जिस पर मार्टिन ने शेरोन से पूछा कि कहाँ चलें। इस पर शेरोन ने मार्टिन को अपने घर पर चलने के लिए कहा कि आपको कोई तो जगह चाहिए होगी सोने के लिए। इस बात पर मार्टिन ने हैरानगी से शेरोन को देखा और उससे कहा कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई है, क्योंकि वो तो उसे जानती भी नहीं है। हो सकता है कि वो कोई पागल हो या कोई उजरती कातिल हो।
جاری ہے۔